यस, तो हम लास्ट वीक कुछ पॉइंट डिस्कस कर रहे थे। हमने शुरू किया था, probably you may close for a minute. So we were discussing what is sadhana bhakti, what is bhav bhakti, kruti sadhya bhavet sadhya, sadhana sa bhava sa sadhana. By action of senses, the bhakti is done with the action of senses in the mind for the purpose of attaining bhava for Krishna. That sort of bhakti is called as sadhana bhakti. And sadhana bhakti का हमने क्या example दिया था, जैसे priming of a pump. So generally the mind controls the senses, and intelligence controls the mind, and soul is highest in the hierarchy. But initially, sadhana bhakti, we have to start from the senses. We have to purify our senses, and gradually by purification of senses, when you engage senses in Krishna's service, we discuss that the mind, whatever fresh impressions are there, fresh impressions, whenever you engage in senses something, those kind of thoughts will come. है ना, कल कोई मूवी देखा किसी ने, तो मूवी के सारे विचार मन में आएंगे, क्योंकि आँख कान से मूवी देखने में लगाया था तो मन में लग गया था. So that sort of things will come. So initially we have to engage our senses, our eyes, our ears, our tongue in Krishna's service, and by doing that, gradually the mind will have Krishna conscious impressions, and that Krishna conscious impressions gradually purify the mind, and automatically the mind will also get engaged in Krishna's service, and the further purification will happen, and gradually that inner bhava will be aroused. So we had discussed that. वो हमने चर्चा किया था. फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि भक्ति का क्वालिफिकेशन, भक्ति कैसे मिलती है किसी, हाउ वन गेट्स भक्ति. तो हमने देखा था कि इज इट बाय पाइटी, द लक कॉज्ड बाय पाइटी, और इज इट बिकॉज ऑफ कॉस्टलेस लक. सो बोथ आर फॉल्सिफाइड. कि कॉजलेस लक से भी नहीं मिलता है भक्ति. क्यों, कैसे पता चलता है हमें कॉजलेस लक से नहीं मिलता है भक्ति? क्योंकि कॉजलेस लक से मिलता तो प्रचार के बारे में नहीं कहते थे शास्त्र. शास्त्रों में लिखा गया है कि आपको वन शुड प्रीच, कृष्ण सेज वन हू प्रीचेस दिस मैसेज वेरी डियर टू मी. ये देखा हमने. और भक्ति जो है हमें पाइटी से भी नहीं मिलता है, क्योंकि वी सी दैट मेनी पीपल हु आर इम्पायस और हु आर सिंफुल पीपल, they also come to bhakti. They also start practicing devotional service. So generally that is not seen, and shastras also don't see. Kirat, Runanda, Pulinda, Pulkasha, Avira, Shumma, Yavana. We see the shloka that all these simple people actually they will also get purified by practice of bhakti. So the piety is not a qualification for bhakti. वो पात्रता नहीं है कि हम पुण्यवान होना चाहिए. नहीं, भक्ति किसी को भी प्राप्त हो सकती है. ये भी हमने देखा था. और तीसरे 3 शक्यताएं देखी थी. Then bhakti yadruchaya. Yadruchaya, independent will of whom? By independent will of Krishna do we get bhakti? No, because if Krishna gives by his own independent will, then Krishna's status as non-biased Supreme Lord will not remain same. That means Krishna किसी को देते किसी को नहीं देते, उसका मतलब Krishna biased हो जाएंगे. So that means Krishna doesn't give personally bhakti. Then we saw, does a devotee gives bhakti? Yadruchaya and अहेतुकी, another condition. अहेतुकी का मतलब कि it has cause in itself. भक्ति अपने आप से उत्पन्न होती है. तो हमने देखा कि दोनों कंडीशन पूरे होते हैं जब डिवोटी भक्ति देता है. That bhakti, when devotee gives bhakti, he gives yadrucha by his own independent will. Why? Because he cannot give to all. So he'll see, he'll find out that who are most suitable audience, who is my most suitable audience, और बस उस suitable audience के लिए भक्ति देंगे. ज्यादा करके वैसे प्रयास करें. कोई बच्चों के लिए प्रीचिंग करेगा, कोई कॉर्पोरेट्स के लिए प्रीचिंग करेगा, कोई लेडीज के लिए क्लासेस करेंगे, या कोई कॉलेज में जाके लेक्चर्स देंगे. बेस्ड अपॉन वन्स ओन प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस अ पर्सन में डिसाइड एंड चूज हु इज गोइंग टू बी हिज ऑडियंस. यदृच्छा है, अपनी इच्छा से कर रहे हो. तो दूसरा हमने देखा था कि यदृच्छा है तो, and that also second point we saw that scriptures also say actually that Madhyamadikari discriminates. That is a qualification of Madhyamadikari, that he sees that these are the people who are devotees, these are the new people. Okay, these are people who are not envious, non-envious people. So he'll give them bhakti, he'll try to preach to them, and he'll make friendship with devotees. भक्तों के साथ वो मैत्री करेंगे, और जो innocent निष्पाप लोग हैं उनको प्रचार करने का प्रयास करेंगे, और जो लोग हैं जो उनसे सीनियर है भक्ति में उनका संग लेंगे, और जो ईर्ष्यालु है उनसे दूर रहेंगे. सो मध्यमाधिकारी discriminates. By his own independent will he decides, okay, these are the people envious, I'll not associate with them. So he has his own choices. He makes based upon one's preferences for preaching. A person can find out actually where I can most suitably render myself, and accordingly he will try to do that.
or as per the instruction. Twice independent will. So is it independent will of the devotee affected by Krishna? No. Is it independent of Krishna's will? We saw no. It's not independent of Krishna's will. If it is independent of Krishna will, तो डिवोटी नहीं है फिर. कृष्णा के इंडिपेंडेंट कुछ काम कर रहा है और कृष्णा का विल है वो समझो, और इसीलिए डिवोटी कर रहा है. उसका मतलब क्या हो गया कि कृष्णा वापस कंट्रोल कर रहे हैं. कृष्णा बायस्ड इसलिए, and Krishna is telling everything, okay, only these people you should preach. No. We saw that Krishna has independently surrender his own free will. भगवान ने अपना सरेंडर कर दिया, दे दिया है बोल सकते हैं. भगवान ने अपना खुद का जो विल भक्त को दे दिया, भाई आप प्रचार करो, you can decide. Krishna has given this will to a devotee. Okay, you can decide on your own whom you want to preach. I don't want to tamper with the free will of a devotee, no person. मैं व्यक्ति के जो सूक्ष्म, उनको जो इंडिपेंडेंस दिया है मैंने, स्वतंत्रता दिया है सूक्ष्म, उससे मैं खिलवाड़ नहीं करना चाहता. भगवान बोलते ठीक है, आप जाके प्रचार कर सकते हो. तो भक्त कहता कि मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, मेरा इतना भक्ति में आनंद है, आप भी कीजिए. So the devotee may give one try, but Lord doesn't want to directly. So we see that bhakti is, both conditions are getting fulfilled here. Bhakti is अहेतुक also, and how that compassion comes in the heart of a devotee. भक्त के हृदय में compassion कहाँ से आता है? हम देखा कि उसके हृदय में जो भक्ति है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती किंचन सर्वैर्गुणैः तत्र समासते सुरा, उसमें सारे गुण निवास करते हैं. तो his heart becomes soft by practice of भक्ति. भक्ति करने से उसका हृदय नर्म हो जाता है और पिघल जाता है और देख नहीं पाता है कि संसार में दुख क्यों है लोगों को, और इसीलिए वो जाके भक्ति देना चाहता है. तो भक्ति से ही भक्ति उत्पन्न होती है. भक्ति से उसके हृदय में अच्छे गुण उत्पन्न होते हैं और उसके कारण वो प्रचार करता है. सो अल्टीमेटली भक्ति इज कॉजिंग bhakti. So ahituki and yadruchya, both conditions are fulfilled when we understand that devotee is giving bhakti. Does it bhakti is caused by independent will of a jiva? So generally before coming to devotional service, jiva doesn't have independent will. उसका खुद का will नहीं होता है. वो जो होता है वो अपने थ्री मोड्स के ऊपर जो चॉइसेस मिलते हैं उसके ऊपर ही काम करता है. थ्री मोड्स ऑफ material nature, whatever way they dictate them, as per the choices of three modes of material nature a person will act. So generally जो लोग भक्ति नहीं करते हैं उनमें इतना चॉइस नहीं होता है. कोई पिज्जा खाता है, कोई पास्ता खाता है, वो मेरे को बड़ा चॉइस है, तुम तो डिसाइड करके खाते हो कि तुम बस प्रसाद ही खाओगे, बट मेरे को कितना फ्रीडम है, आज चाहिए तो सलाद ऑर्डर करूंगा, कल चाहिए तो मैं वो डेजर्ट ऑर्डर करूंगा, परसों आइसक्रीम ऑर्डर करूंगा. बट उसको चॉइस है क्या? वो जनरली उसका चॉइस नहीं है. वो उसको मोड्स ऑफ मेंटल नेचर जो है, तीन गुण का प्रभाव में उसको फोर्स किया जाए, और जैसे जिस गुण में वो है अभी उस समय, उस प्रकार से वो चॉइस करे. तो इसीलिए वो चॉइस बदलना उसको बड़ा मुश्किल हो जाता है. समझ रहे? बट भक्त खुद से चॉइस करता है. राइट? मेनी पीपल आर डूइंग समथिंग बिकॉज जस्ट दे गॉट टू डू इट एक्चुअली, है ना. जैसे मुझे लोग कई लोग बोलेंगे, जैसे कोई ब्रह्मचारी होता है इस्कॉन में, तो वी हैव वेरी लाइक इन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू आवर फ्रीडम इज वेरी लिमिटेड, कि आप एक ही कलर का कपड़े पहनते हो, बस आप यही चीज खाते हो, प्रसाद जो रहता है, और आप ओनली लिमिटेड टॉपिक्स यू डिस्कस, लेकिन दुनिया भर के टॉपिक के ऊपर आप डिस्कस करते हो. तो आपको कितना लिमिटेड में रखा गया, आपका इंडिपेंडेंस कोई है ही नहीं आपको ज्यादा, ऐसे कोई बोल सकता है ऊपर से, है ना. बट और लोग बोलेंगे कि देखो हमको जॉब चेंज करना है तो हम रोज जॉब, आज इस कंपनी में किया तो उस कंपनी में, आपको तो बस एक ही किताब पढ़ना है, ये उसी संस्था में आप करते हो, है ना. तो आपको कितना चॉइस है, कोई बोल सकता है ऐसा, है ना. तो कैसे आंसर करेंगे हम इसे? है क्या नहीं है? ब्रह्मचारी को कोई फ्री विल है? हाउ डू यू आंसर दिस? नहीं प्रभु जी, आपने क्या बोला कि इस्कॉन की बुक्स पढ़नी पड़ती हैं आपको, ये बोल रहे आप? हाँ, मीन्स कोई कहेगा ना कि बस आप एक ही तरह की किताब पढ़ते हो, एक ही संस्था में आप सेवा करते हो, हम तो चाहिए तो रोज जॉब बदल सकते हो. हम तो कहते हैं हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, वैदिक शास्त्र, और वो बेसिस है. मेरा पॉइंट ये था कि कोई कहेगा आपका फ्री विल बहुत नहीं है, अपना कोई फ्री विल ही नहीं है, और हम तो देखो कितना फ्री है, तो आप कैसे आंसर करोगे इसे? ये तो मार्क खुद ने वो एक्सेप्ट किया है ना. नहीं, शास्त्र में तो कहा है ना, गुरु साधु शास्त्र के हिसाब से चलना. फ्री विल ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर हम वी आर रॉन्गली यूजिंग इट, डेविएट कर. एक एक हाथ ऊपर करके आंसर कीजिए, थोड़ा इजी रहे. संगीता माता जी बताइए. हरे कृष्णा प्रभु जी. हर जीव के पास फ्री विल है, और ब्रह्मचारी के पास भी फ्री विल है कि वो शास्त्र पढ़े या मॉल में जाए. तो आई थिंक वो फ्री विल को शास्त्र पढ़ने में और भगवान की सेवा में लगा रहा है, इसलिए मतलब ये भी फ्री विल उसकी है. Madhi Mata, you want to add something to this answer? Hare Krishna Prabhu. Prabhuji, like this thing, how will you tell those who say that you are just limited to one kind of eating or one kind of studying? What I feel is,
I've heard it in one of the lectures that those who are eating multiple things, they are actually more, they are not able to control their senses, so they are being controlled by the other things. Contrary, those devotees who are practicing, they are the controllers. They are able to control on what they want to do. They're not being controlled by the set of object. Right. So generally हम देखते हैं. Thank you, Manoj. Thank What is the problem? Hare Krishna. I'm still audible, right? मेरा आवाज आ रहा है? ओके. तो हम देखते हैं कि जो डिवोटी होता है, तो बाहर वाले लोग जॉब इसीलिए करते हैं क्योंकि किसी को इच्छा, कितना लोगों को इच्छा है कि हम जॉब करें, कष्ट करें, बट बहुत बार हमें पेट भरना है, हमें ईएमआई पे करना है. Many times so many considerations are there actually. Generally, that's why people tend to do job. They don't want to do, right? The free will is given, a lot of money is given. How many people want to do that, right? So many times things are forced actually. लोग देख रहे, कर रहे, भाई हमको भी वो ट्रेंड फॉलो करना है, राइट? ऐसा ये रहता है. बट जो भक्ति में आता है, स्पेसिफिकली द मंक्स हु आर सर्विंग, उनके लिए there is no external motivation. Nobody is paying them salary for doing what they do, right? But still they're doing it, and every single day doing it. So that means that money is not motivation for doing the job what they're doing. Or bhakti mein bhi jo bhi, not only brahmacharis. So when devotees are engaged in devotional service, any devotees engaged in devotional service, they are not getting any material remuneration out of it. Outside world people only will do when they get money. So there it's not free will actually, because just they are getting money. So that's why they're ready to do what they're trying to do, what they will do. But for a devotee, in spite of not having any kind of material, उसमें कुछ भौतिक लाभ नहीं मिलने वाला, तो भी वो कार्य करते हैं. इससे हमें पता चलता है कि इसके पीछे उनका खुद का इच्छा है, इसलिए वो कर रहे हैं, क्योंकि बाकी कोई प्रलोभन तो नहीं है इसमें, है ना. सो खुद से उन्होंने चूज किया, जैसे माता जी भी कह रहे थे कि ये फ्री विल का खुद से इस्तेमाल करके ये चूज किया भक्ति को फॉलो करना. और भक्ति जो 3 गुणों से परे है, तो इसीलिए वो 3 मोड्स के बाहर है. जब डिवोटी में जो फेथ आता है, भगवान का बारे में श्रद्धा आता है, तो एक प्रकार से 3 गुणों से परे है वो. अभी जो चॉइसेस हम कर रहे हैं, वो हमारे प्रकृति के अनुसार चॉइसेस करें. शुरुआत में हम देख रहे थे ना कि व्यक्ति में 2 प्रकार की इच्छा आती है. एक श्रद्धा से उसकी इच्छा आती है, और अपने प्रकृति के कारण इच्छा आती है. जो श्रद्धा से इच्छा आती है वो 3 गुणों से परे है कि भगवान के भक्तों का संग करे, हरि नाम का जप करे, शास्त्र का अध्ययन करे. परंतु बाकी जो इच्छा आती है, अदर डिजायर्स व्हिच मे कम, material desires, these desires are called anarthas. These are based upon our because we are into particular mode of material nature, that's why that anartha will come, right? तो बाहर के लोग होते, जब तक, मेरा पॉइंट पूरा ये कहने के पीछे था कि इट्स भक्ति इज आल्सो नॉट कॉज्ड बाय इंडिपेंडेंट विल ऑफ अ लिविंग एंटिटी, बिकॉज इंडिपेंडेंट विल है ही नहीं. जब तक भक्ति में कोई आता नहीं है, उस 3 गुणों के प्रभाव पे वो कार्य करता है. जैसे 3 गुण रहते हैं उसके अनुसार वो चॉइस करता है. When somebody takes devotion service actually is rising above 3 modes, and वो आत्मा का स्वभाव है भगवान को प्रेम का है, ओरिजिनल नेचर है. अभी वो क्लाउड हो चुका है, इसीलिए हम बाकी सारी चॉइसेस कर रहे हैं. हम भूल गए हम कौन है. That's why we are making so many different choices. जब आत्मा का शुद्धिकरण होता है, जब आत्मा का भगवान में, जीव का भगवान में श्रद्धा आता है, तो वो भक्ति कोई चॉइस करता है. तो एक्चुअली वो अपने नेचुरल टेंडेंसी के अनुसार वो कार्य करता है. That natural tendency is right now covered over. बहुत कवर हो चुका है. इसलिए ऐसे लगता है कि like that's why he is not called as free actually, because he's so much covered over, and what choices he's making, just modes of material nature making him do these choices. Because soul, if it is pure, he will never do such choices actually. When somebody get purified, he'll never engage his senses in material sense gratification. ब्रह्मा जी तो दूसरे स्कंद में कहते हैं कि मेरे को इतना, भगवान आपके चरणों का ध्यान करके मुझे इतना श्रद्धा उत्पन्न हुआ है, आई एम एक्सपीरियंसिंग सो मच भक्ति दैट आई कैन विद फुल गारंटी आई कैन सी न मे ऋषिकानि पतन्ति असत्पथे. कहते हैं कि मेरे जो इंद्रिय है कभी भी गलत मार्ग पे नहीं जाएंगे. ब्रह्मा जी को इतना कॉन्फिडेंस है अपनी भक्ति में, बिकॉज इन माय माइंड आई एक्सेप्ट योर लोटस फीट, एंड इन माय हार्ट आई एम होल्डिंग योर लोटस फीट बाय माय हार्ट. सो माय सेंसेस विल नेवर एंगेज इन अ मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन. तो भक्त का इतना शुद्धिकरण होता है तो गारंटी के साथ कह सकता है कोई पतन नहीं होगा उसका. तो इससे हमें पता चलता है कि भक्ति जीव के खुद के इंडिपेंडेंट विल से भी नहीं होती है, बिकॉज इंडिपेंडेंट विल होता ही नहीं जब तक वो शास्त्र में कोई उसको समझाता नहीं है. और भक्ति के उसको भक्ति से भक्ति जब प्राप्त नहीं होता है, जब भक्ति हृदय से भक्ति प्राप्त नहीं होता है, टिल दैट टाइम ही कैन नॉट मेक एनी इंडिपेंडेंट चॉइस. तो ये हमने पहले
देखा था, नो दिस लास्ट पॉइंट वी हैड नॉट सीन, सो जस्ट टुडे वी सॉ दैट. इसको प्रश्न है किसी का, एक ये दो प्रश्न किसी का इसी के ऊपर. ओके, काफी सारे प्रश्न हैं. रसिक शिरोमणि प्रभु, यस. Hare Krishna Guruji, Dhanwad. Prabhu, is that free will is not for the our next destination, as so when we are going above the three modes, then it's going towards bhakti, and when Yes, yes. even we can't, even when we are talking, we are not controlling our breathe. या वो तो है, वो तो एक्चुअली माइन्यूट फ्री विल जो है, बट फ्री विल बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है अपने तीन गुणों के प्रभाव से. तो ऐसा है कि वो प्रकृति के अनुसार ही वो चॉइस कर रहा है, उसका मतलब है एक तरीके से. उसका फ्री विल क्लाउडेड रहता है जब तक तो भक्ति नहीं लेता है, तब तक फ्री विल होते हुए भी वो पूरा तीन गुणों के आधार पे वो अपने डिसीजन लेता है. सो इज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड. तो जब भक्ति लेता तो ये अपने नैसर्गिक आत्मा के स्वभाव के अनुसार वो डिसीजन लेता है. ओके ब्रो, रसिक आई डोंट नो. Yes, yes, yes. यस, पल्लवी माता जी, यस. वैसे मुझे आधा आंसर मिल गया अभी आपने जो प्रभु जी को आंसर किया. बट प्रभु जी हम देखते हैं कि बहुत से भक्त हैं जो बहुत अच्छी सेवाएं करते हैं और ऐसा कोई जरूरत भी नहीं है, बट इवन देन वो फिर अपना कोई काम छोड़ते तो नहीं है. फीमेल के लिए साइड पे बोल रही हूँ मैं कि ऐसा नहीं बोल रहे जॉब छोड़ना पड़ेगा, बट एक्चुअली वो भी फ्री विल से एक तरीके से, क्योंकि भगवान की सेवा में अर्पण करना चाहते हैं जॉब को, है ना. सो अपने चॉइस से वो कर रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ थ्री मोड्स ऑफ मेंटल नेचर डिक्टेटिंग देम, बट they are trying to utilize what they're doing, actually the results of that they want to engage in service of the Lord. So willingly they're doing what they're doing actually. but sometimes they share that कि हमें हम छोड़ना चाहते हैं, बट हम डर मतलब फीमेल साइड पे मैं बोल रही हूँ प्रभु जी कि हम बोल रहे हैं ना कि रिमोट से ऊपर हो जाते हैं हम ऊपर. दे शेयर दिस थिंग कि नहीं अभी भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, उससे भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, अपना स्टेटस अपना वो सब छोड़ना भी नहीं चाहते हैं. हम जो है, जो साधना भक्त है उनका दोनों भी चलता है एक साथ में. उसका डायनेमिक होता है. हमने उसके देखा था अपर सर्किट लोअर सर्किट. कभी कभी हमारे अनर्थ आते हुए ज्यादा, कभी कभी हमारी भक्ति में इच्छाएं आती है. ऑफ कोर्स जॉब छोड़ना है नहीं छोड़ना ये कोई अनर्थ या भक्ति में इच्छा दोनों भी नहीं है. आपके सिचुएशन के अनुसार और गुरु के गाइडेंस के अनुसार आप डिसाइड करोगे. तो जो डिवोटी जब जॉब करता है, नो दैट मे बी नो जस्ट टू सपोर्ट हिज डिवोशनल सर्विस, एंड डिवोशनल सर्विस इज बियॉन्ड थ्री मोड्स ऑफ मेंटल नेचर. सो बिकॉज ऑफ दैट डिजायर एक्चुअली ही मे रेंडर, no, like he may do outside job. So in that way he's also exercising his free will. He's deciding not based upon three modes of mental nature, but he's deciding as per the instruction of spiritual master, which is helping him to transcend the three modes of mental nature. तो इसीलिए वो भक्त का जॉब करना भी, भौतिक लोगों की जॉब करने का उनका इच्छा अलग कारणों से वो जॉब कर रहे हैं. उनका तो जो इच्छा है सारा वो तीन गुणों के प्रभाव में उनका इच्छा है, भगवान की भक्ति का इच्छा की तरह, है ना. तो मेल फीमेल का भी नहीं इसमें एक्चुअली कोई बात. पल्लवी माता जी गेटिंग इट? मैं समझ पा रही हूँ. हाँ जी, नहीं सबका नहीं होता प्रभु जी, कईयों का एक्सपीरियंस होता है कि वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं अभी भी अपने कि हमें जरूरत भी नहीं है, हमें जरूरत भी नहीं है, इतना फंड्स है हमारे पास, बट इवन देन वी फील अट्रैक्टेड. तो मे बी वो प्यूरिफिकेशन का ही कमी है ना अभी, फिर दे आर ट्राइंग टू गेट प्यूरिफाइड. यहाँ पे ये बात है. Actually, it's very complex. Why somebody makes particular choice is not one, like it's a black and white answer. There might be very complex shades may be there. Why particular decision is there, and उसके पीछे का intention क्या है, बहुत खोद के हमें देखना पड़ेगा, और बहुत सारी चीजों का फैक्टर का कॉम्बिनेशन भी रह सकता है. एक पर्टिकुलर डिसीजन आदमी क्यों करता है ना. हम एकदम ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं बता सकते ना उसको. नहीं दोनों तरह के हैं प्रभु जी. और इवन अभी तो मेरी एक डिवोटी है, वो माता जी हैं, और वो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे. तो प्रभु जी की जॉब में थोड़ा सा फाइट चल रहा है. तो उन्होंने उनको बोला कि वो नहीं करना चाहती जॉब, पर अब उनके प्रभु जी बोल रहे हैं कि नहीं हमें करना पड़ेगा क्योंकि मेरा बड़ा टेम्परेरी लग रहा है अभी इस टाइम. तो वो बेचारी बहुत भागवतम पढ़ के इंस्पिरेशन ले रही थी. तो हम उन्हें समझा रहे थे कि आप सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए थोड़ा माता जी अब जॉब करोगी, बिकॉज वो नहीं करना चाहती थी, वो भक्ति को ही टाइम देना चाह रही थी. ओके, और कोई प्रश्न है किसी का इसके ऊपर? डन आई थिंक. तो आज हम कुछ बोल रहे थे गौरी माता जी, आपका माइक म्यूट है. चित्रा ओके, नाउ विल सी. दो प्रकार का श्रद्धा भी हमने देखा था. एक श्रद्धा है
शास्त्र विश्वासमयी श्रद्धा। और दूसरा हमने श्रद्धा देखा था, जो श्रद्धा है वो है रागमयी श्रद्धा या लोभमयी श्रद्धा। तो शास्त्रों में जो शास्त्रों के कारण जो श्रद्धा होती है उसे वैदिक भक्ति, वैदिक भक्ति का मूल है कि शास्त्रों में श्रद्धा। वो श्रद्धा कहाँ से आती है? वो श्रद्धा आती है जब शास्त्रों का पालन करते हो और आपको कोई रिजल्ट मिलते तो इन्फ्रेंस से। अभी सारों शास्त्रों का सारा रिजल्ट आपने नहीं देखा रहेगा, बट आप कुछ अप्लाई करते हो शास्त्रों को और आपके जीवन में आप परिणाम देखते हो, हाँ मैंने ऐसे किया था और मेरा वो काम हुआ। एक्चुअली गीता में ऐसे बताया गया था कि इस प्रकार से आप डाइट करो, आप सत्वगुण में आओगे और उससे योर माइंड विल बिकम प्योर। और मैंने डाइट में चेंज किया, माय माइंड इज मच मोर क्लियर नाउ, राइट? अ पर्सन may develop faith in scriptures by following a certain instruction of scripture, then he'll get a faith in scripture, by associating with devotees faith will get strengthened, right? तो इस तरह से श्रद्धा आता है और शास्त्र में कहा गया है इसलिए व्यक्ति कार्य करता है। जैसे इसमें कहा गया था कि उसको भगवान के प्रति he has not got a firm faith actually yet, sorry not I'm telling, he has not got pure love yet, he has got faith in scriptures, but ऐसे नहीं कि उसको शुद्ध प्रेम है इसलिए वो भक्ति के कार्य कर रहा है, नहीं, because is mentioned in scriptures, that's why he is doing that। इसको क्या है? शास्त्रमयी श्रद्धा। और वो जो श्रद्धा है स्पेसिफिकली भक्ति शास्त्र के प्रति होता है, डिवोशनल स्क्रिप्चर्स। बाकी भी बहुत सारे योग शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, ज्ञान शास्त्र है, एंड शास्त्रों में से कहा गया है कि जो भक्त होता है वो अस्वीकार नहीं करता, उनको स्वीकार करता है, परंतु उसकी वास्तविक श्रद्धा होती है भक्ति शास्त्र। जैसे गोपाल तापनी उपनिषद है, जैसे श्रीमद् भागवत है, जैसे भगवत गीता है, जैसे उत्तरकांड पद्म पुराण का, जैसे नारद भक्ति सूत्र है। तो ये सारे जो है ये शुद्ध भक्ति के बारे में वर्णन करते हैं। जो भी अभी मैंने स्क्रिप्चर्स कुछ गिने चुने स्क्रिप्चर्स है ये शुद्ध भक्ति के बारे में वर्णन करते हैं। बाकी सारे जो स्क्रिप्चर्स है धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में भी वर्णन करते हैं। तमोगुण रजोगुण में जो लोग उनके भी नीड्स कैटर करने वाले स्क्रिप्चर्स है। बट ये जो स्क्रिप्चर्स है श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, उत्तरकांड पद्म पुराण, गोपाल तापनी उपनिषद, ये डायरेक्ट भक्ति को शुद्ध भक्ति को प्रोपोगेट करते हैं। तो उसका जो श्रद्धा होता है इस प्रकार से शास्त्रों में श्रद्धा होता है। और शास्त्र में श्रद्धा के अनुसार इस भक्ति के 3 प्रकार का विभाजन किया गया। एक उत्तम अधिकारी, मध्यमाधिकारी और कनिष्ठाधिकारी। I just read little bit. शासनेनैव शास्त्रस्य सा वैदिक भक्ति रुच्यते। शासनेनैव शास्त्रस्य, राग नहीं अभी भगवान के प्रति, और शासन शास्त्रों के नियमन के अनुसार, गाइडेंस के अनुसार उनका जो श्रद्धा है वो है, तो इसके वैदिक भक्ति कहा गया है। विधि के अनुसार जो भक्ति करते हैं क्योंकि शास्त्रों में श्रद्धा है। तो उस क्योंकि पूरा फाउंडेशन ही श्रद्धा है शास्त्रों में वैदिक भक्ति का, तो अकॉर्डिंग टू द ग्रेड्स ऑफ फेथ द डिवोट इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज। उसका कितना श्रद्धा है उसके अनुसार 3 उसका कैटेगरीज में विभाजन किया गया है। एक है उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। तो हम रोज पढ़ भी रहे हैं एक्चुअली श्लोक का। क्या पढ़ रहे हैं हम? उत्तम अधिकारी का डेफिनेशन क्या है? यह शास्त्र आदिषु निपुणः, या शास्त्र युक्त उच्च निपुणः, श्रद्धावान सतु मध्यम। शास्त्र युक्त उच्च निपुणः, जो शास्त्र युक्ति में है, स्किलफुल इन स्क्रिप्चर एंड लॉजिक, पर्सन हु स्किलफुल इन स्क्रिप्चर एंड लॉजिक, सर्वथा दृढ़ निश्चय, और जिसका फेथ भी बड़ा स्ट्रांग है, सर्वथा दृढ़ निश्चय, प्रौढ़ श्रद्धो अधिकारी, स भक्ता उत्तमो मतः, is completely firm in his belief with a deep faith. He has got a deep proud श्रद्धा है उसका, is considered qualified as उत्तम in वैदिक भक्ति, उसको उत्तम भक्त कहा गया है। तो यहाँ पे जीव गोस्वामी कमेंट्री में लिखते हैं in Vaidhi Bhakti, the actions are inspired by the teachings of scriptures. Thus, it may be concluded that root cause of a person's bhakti is faith in content of scriptures. क्योंकि शास्त्र पे आधारित है वैदिक भक्ति, इसलिए उसका रूट कॉज है वो शास्त्रों में फेथ है। So based upon his faith, actually, it can be categorized into 3 categories. According to degree of faith in scriptures, there will be classification of person possessing that faith. That is now the topic of discussion. Shastra Yukta Ucha Nipunam is skillful with scripture and logic. This person developed firm conviction through studying thoroughly the principles of philosophy, tattva, the sadhana and the goal.
संबंध अभिधेय प्रयोजन, अच्छे से उसके बारे में अभ्यास करता है. That is the meaning of sarvatha in all ways. Logic should be here understood as logic following the statement of scriptures, because independent logic is condemned in the verse 1.1.45. हमने लॉजिक को खंडन किया है. 1.1.45 it's mentioned that dry logic is useless actually for bhakti. It is not to be, devotees don't utilize the dry logic. Yes. So logic has to be based upon scriptures. तो कैसे पता चलेगा scriptural logic क्या है? जैसे हमने देखा था कि हम गुरु कृष्ण प्रसाद दे पाए भक्ति लता बीज, भक्ति तो गुरु कृष्ण के प्रसाद से मिलता है ऐसे लिखा गया, परंतु यहाँ पे लिखा गया है कि हृदय में ऑलरेडी भक्ति रहता है. ऑलरेडी दैट भक्ति इज ऑलरेडी नित्य सिद्धस्य भाव से. हाउ टू अंडरस्टैंड what is that seed of faith, or what is that seed the Guru and Krishna are giving? Then we understand actually. We understand the definition of bhakti, that sadhana bhakti causes prema bhakti. The process of sadhana bhakti which is given to a living entity actually, that is called as the seed given by Guru and Krishna. So by scriptures we understand, है ना. Scriptures उसका बेस है, वो scriptures है. जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे आत्मा के लिए प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि कोई मर जाता तो हम कहते हैं कि वो चला गया. इसका मतलब कौन चला गया? आत्मा चला गया. That means you are not body or the soul. अभी सिर्फ प्रभुपाद जी लॉजिक से बताते हो, शास्त्र में लिखा ही नहीं रहता था हम आत्मा है, तो ये गलत होता था. इस प्रकार से डिवोटी कभी लॉजिक देते नहीं है. जो शास्त्र में लिखा गया है, क्योंकि शास्त्र में लिखा गया है कि हम आत्मा है. न हन्यते हन्य माने शरीर. प्रभुपाद जी कोट करते थे कि बॉडी इज स्लेन बट द सोल इज नेवर स्लेन. शरीर मर जाता है परंतु आत्मा का भी विनाश नहीं होता है. तो शास्त्रों में लिखा गया है कि हम आत्मा है. तो इसलिए लॉजिक आप लगा सकते हो फिर बाद में कि आदमी मर जाता है तो एक्चुअली कौन चला गया? आत्मा चला गया. अदरवाइज ऐसा नहीं कि शास्त्र में कुछ लिखा नहीं है और आप अलग अलग चीजें देख के आप कुछ तो निकाल रहे हो, कह रहे हो कि यही सत्य है. बाहर के बहुत सारे लोग शास्त्रों को लिए बिना उसी को प्रूव करते हैं. अलग अलग, अभी नाम नहीं लूंगा मैं, बट बहुत सारे गुरु है जिनका बातें बहुत लॉजिकल लगती है और उनके लाखों फॉलोअर्स होते हैं. बट प्रॉब्लम क्या है कि एक चीज भी स्क्रिप्चर्स में नहीं पाई जाती. तो इसे लोगों पे हम श्रद्धा नहीं रख सकते. आवर लॉजिक इज ऑलवेज बेस्ड अपॉन आवर फर्म फेथ इन स्क्रिप्चर्स. और यहाँ पे लिखा गया और आगे पूर्व परानुरोधेन कोनो अर्थो अभिमतो भवेत्. A meaning should be accepted with reference to what precedes and what follows. Such reasoning is the logic to be used. Dry logic should be rejected. ऐसा लॉजिक यूज करना चाहिए. कैसे लॉजिक? कि पहले कोई भी श्लोक का अर्थ समझना है तो पहले क्या लिखा था, बाद में क्या कहा गया, तो उसे समझना है ना, तो हमें पता चलेगा, है ना. जैसे अभी आई थिंक श्रीनिवास had asked me, श्रीकेतन had asked me question in the group कि प्रभु जी आपने, आप सबने देखा रहे कि उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा था ग्रुप में कि प्रभु जी आप तो बोले कि भक्ति जो होती है वो नेचर एक हमारा नेचर है वो, बट नेचर चेंज होता है. तो उसका मतलब कि फिर भक्ति नेचर है क्या है वो एग्जैक्टली, ऐसे प्रश्न पूछा था उन्होंने. तो एक तरीके से probably I might have said also भक्ति इज आवर डूइंग, भक्ति इज आवर नेचर, बट देन इट हैज टू बी सीन एक्चुअली कि पहले क्या बताया गया था, बाद में क्या बताया है ना. एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिया तो ऐसे लगेगा अरे नेचर तो चेंज होता है, कभी कभी ऐसे दिखता है, तो फिर भक्ति भी चेंज हो जाएगी, तो यानी हमारा नित्य धर्म नहीं है भक्ति, ऐसा लगेगा. नो, वी हैव टू सी एक्चुअली व्हाट इज टोल्ड बिफोर, व्हाट इज टोल्ड आफ्टर, व्हाट इज टोल्ड इन स्क्रिप्चर्स. ओवरऑल वी गॉट टू सी. अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना. कई बार शास्त्रों में कई चीजें जोकिंगली कही जाती है. जैसे तीसरे स्कंद में हम देखते हैं कि विष्णु भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी जी मेरी सेवा कर रही. क्यों कर रही लक्ष्मी जी मेरी सेवा? क्योंकि मैं ब्राह्मणों का चरण धूलि अपने सिर के ऊपर लेता हूँ, इसीलिए लक्ष्मी जी मेरा सेवा कर रहे हैं, तो छोड़ के चले जाएंगे. तो विष्णु चक्रधावट को लिखते हैं कि भगवान जोकिंगली कह रहे चाहते हैं. सो ऐसा नहीं कि शास्त्र में सब कुछ लिखा गया वो एग्जैक्टली सत्य है. समटाइम्स सर्टेन थिंग्स आर टोल्ड इन अ जोकिंग वे, समटाइम्स सर्टेन थिंग्स आर टोल्ड इन sarcastic way. So these things are not to be accepted as true, even given in scriptures, even in bhakti scriptures, if it is told jokingly. So we need acharyas to understand actually. So पूरा context देखना पड़ता है उसका, तब हमें पता चलता है कि actually उसका मीनिंग क्या है. अदरवाइज हमें कभी समझ में नहीं आएगा. विल टेक आउट इंडिपेंडेंट मीनिंग. और मायावादी लोग ऐसे ही करते हैं कि एक श्लोक निकालते, बस पूरा भगवद गीता नहीं देखेंगे, बस एक श्लोक निकालेंगे और कहेंगे कि देखो यहाँ पे अहम ब्रह्मास्मि से लिखा गया है कि आप सब ब्रह्म स्वरूप हो, या तत्वमसि लिखा गया है कि यू आर दैट, आप वही हो, ब्रह्म हो. बस वो एक चीज निकालेंगे और बाकी शास्त्र में क्या लिखा गया है वो सब फेंक देंगे वो सारा. सो बिकॉज दे डोंट थरोली स्टडी और दे डोंट यूज
all the statement scriptures. That's why they cannot stand on their, whatever the convictions are there, they're fallible convictions, उनको defeat कर सकते हैं. You getting? So ये जो श्रद्धा है उत्तम अधिकारी का श्रद्धा, पहले तो है कि वो शास्त्र आदि से निपुण है, he knows scriptures very nicely, but not only he just knows scripture, ऐसे नहीं कि quote कर सकता है. Actually he has a faith in scriptures. How that faith develops, he practices that scriptures, he experiences that, and he gains the faith. That's how he got a mature faith. इसलिए यहाँ पर क्या कि प्रौढ़ श्रद्धो अधिकारी, उसका श्रद्धा प्रौढ़ हो चुका है. ऐसे नहीं कि बस स्क्रिप्चर एक के ऊपर एक बोल रहे हैं, परंतु आप आपने स्टोरी सुना रहेगा, आई थिंक मैंने बताया था कुछ हफ्ते पहले. शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, दाना खाना नहीं, जाल में फंसना नहीं, है ना. एक बार कबूतर के दादाजी ने कबूतर को सिखाया कि देखो शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, दाना खाना नहीं, जाल में फंसना नहीं. ये उन्होंने पूरा रट्टा करवाया उनको. वो सारे जो जूनियर कबूतर थे वो सब सीख गए, वो सब गा रहे थे कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, दाना खाना नहीं, जाल में फंसने. शिकारी आएगा, दाना डालेगा, ऐसे गा रहे थे. एक दिन शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला, और ये सब गा रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा. जाते जाते उसमें चले गए खाने के लिए और फंस गए उस जाल, और गा रहे थे वहां पे जाल में फंस के, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, दाना खाने नहीं फंसता. Getting? So sometimes we just quote scriptures, but we may not be experienced, we may not have faith, or our faith may not be mature. So we have to also actually, first of all course, knowing scripture is very important. But along with the knowledge of scriptures, we have to apply scriptures and develop experiential faith. And that's how the Pratyaksha Praman is very important. We may say, Are Pratyaksha Praman is important Shabda Praman hai. But for a condition so like us, we have to see the result. आपको कुछ पूछा किसी ने, आप ऐसे क्यों फॉलो करते हो? क्योंकि भगवद गीता में लिखा है. पहले बार बोलोगे आप, 10 साल के बाद वैसे बोलोगे क्योंकि भगवद गीता में ऐसे लिखा है. बट आपका पर्सनल फेथ क्या है, आपका पर्सनल कन्विक्शन क्या है, आपने फॉलो करने के बाद को क्या रिजल्ट आया? We have to tell that. Otherwise people may say अरे भगवद गीता ऐसे कह रहा है, बट आपके लाइफ में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा वैसे. You are just quoting scriptures, right? So भक्ति करके रो रहा है आदमी, रोज रो रहा है और कह रहे हैं भक्ति करके लोग आप बहुत खुश हो जाते हैं, भक्ति करके बहुत खुश हो जाते हैं. और वो बेचारा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, रोज उसको सेवा मिलता है तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है. तो बोले यार आप सिखा कुछ एक रहे हो प्रभु जी और दूसरा कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में. कुछ सुसंगत नहीं लग रहा है कुछ. You're looking very frustrated and you're telling you become ecstatic jolly by rendering devotions. Of course, that might be a story of condition. Right now somebody is not mature devotee, or somebody just doing little bhakti. The thing is, person has to practice that, experience that, then his faith become very, very mature. That's why it's called as Praud Shraddho Adhikari. तो जो उत्तम अधिकारी होता है वो शास्त्र में भी निपुण होता है और उसका फेथ भी मैच्योर होता है बाय प्रैक्टिस ऑफ स्क्रिप्चर्स. बट कई बार लोग क्या उदाहरण देते हैं, साउथ इंडियन ब्राह्मण का स्टोरी का उदाहरण देते हैं कि देखो हमको शास्त्र क्यों पढ़ना है, उसको तो आता भी नहीं था, बट उसका भाव था भगवान के प्रति. एंड एक्चुअली वो इलिटरेट था तो भी वो गीता पढ़ने का प्रयास कर रहा था, और तब उसको हृदय में भाव चैतन्य महाप्रभु की, यू अंडरस्टूड स्क्रिप्चर्स. हम तो लिटरेट है और हमको तो कहा गया गुरु के द्वारा आप शास्त्र पढ़िए. सो वी शुड नॉट गिव दिस लॉजिक एंड रीजन. अब हमारे डिवोटी यूज करते हैं शास्त्र नहीं पढ़ने के लिए. साउथ इंडियन ब्राह्मण देखो वो कहाँ पे स्क्रिप्चर्स पढ़ा था, किधर उसको इतना पढ़ते आता था तो उसके हृदय में भाव उत्पन्न हुआ था. चैतन्य महाप्रभु एक्सेप्टेड दैट. नो, बट वी आर लिटरेट एक्चुअली एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू रीड एंड स्टडी द स्क्रिप्चर्स. So Shastra Yukta Chanipuna, and we have to be. So when Madhyamadikari is put an argument this time right now. Okay, 10 just few minutes more. पर प्रभु जी वो जो आप नेचर की बात कर रहे हो वो तो इटर्नल नेचर, सोल की बात हो रही है ना प्रभु जी. Yes, सोल की तो नेचर यही होती है कि वो Yes. आत्मा से, और वो तो जो बाकी हमारी नेचर चेंज होती है वो तो गुणों के प्रभाव से चेंज होती है. एक्चुअली वो भी जनरली चेंज नहीं करते, नहीं होता है. लाइक जो जुगुनों में होता है उसी प्रकार से भगवान जैसे कहा कि ये व्यर्थ है अर्जुन. आदमी जो होता है अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है. तो अब क्षत्रिय हो तो आप युद्ध करो और उस युद्ध को मेरे सेवा में लगा. राइट. तो नेचर मैं उस दिन कह रहा था जो लाइक बीइंग एंग्री और दैट इज नॉट नेचर, दैट इज अनर्थ. Nature is, Krishna is discussing as per psychophysical nature. Krishna is categorizing as Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. So one need not change that. One can engage that in Krishna's service, and that by that way one can transcend actually. Yes. So that nature need not be changed. Shudra के रह के भी भगवान का सेवा कर सकता है. जैसे प्रभु जी कल हम हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट क्लास में थे, वो बोल रहे थे जैसे मन का नेचर क्या है, वो शांत है बेसिकली, पर आपके अनर्थों के कारण आप क्रोध करते हो या ये अशांत रहता है, वो डिजीज्ड है. इसका मतलब इट्स नॉट इन नेचर, अपनी पर्टिकुलर उसमें नहीं है, वो जो उसका बेसिक नेचर क्या है वो तो अनर्थ है.
हाँ yes. भगवत गीता में जो प्रकृति का संसार में कोई आता है तो उसको उसके गुण कर्म विभाग है, वो चातुर्वर्ण मया सृष्ट, वो गुण और कर्मों के अनुसार उसके चातुर्वर्ण में गुणों के अनुसार कहा गया, गुण कर्म विभाग, तो गुणों के अनुसार वो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य होता है। तो हम ये नहीं देखते कि अर्जुन अभी बहुत रेयर होता है कि विश्वामित्र क्षत्रिय थे और पहले फिर ब्राह्मण बन गए, ऐसा बहुत रेयर है। बट जनरली हम देखते कि जो क्षत्रिय थे वो क्षत्रिय का ड्यूटी किए, and they engage in service of the Lord actually, right? So that need not be changed, basically I'm telling you. That can be engaged in service of the Lord. Anyways, तो यह शास्त्र आदिशु अनिपुणः श्रद्धावान सतुमध्यमा, जो शास्त्र युक्ति में अनिपुण है, अनिपुण का मतलब ऐसा नहीं कि इसको कुछ भी नहीं पता है, बट जिसको बहुत डिटेल में नहीं पता है, जिसने सिर्फ सुना हुआ है, जिसका श्रद्धा है, उसको मध्यमाधिकारी कहा गया। उसका सब कुछ मध्यम है, उसका फेथ मध्यम है, उसका शास्त्र में उसका ज्ञान मध्यम है, और उसका इसलिए मैच्योरिटी भी मध्यम है। So that is called as Madhyamadikari. I think we'll discuss that more, a little bit more about Madhyamadikari. Anybody has any 1 or 2 questions? We'll take 1 or 2 questions and then we'll close. समझ आया आपको ये? तो शास्त्र में मैं कह रहा था कि हम जो शास्त्र में हमें आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शास्त्र हम पढ़ रहे हैं तो उसका कॉन्टेक्स्ट हमें समझना चाहिए, उस कॉन्टेक्स्ट में हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए। विदाउट कॉन्टेक्स्ट वी शुड नॉट स्टडी स्क्रिप्चर्स। So then we understand the overall meaning of the scriptures. Otherwise we will get confused, यहाँ पे ऐसे लिखा है, यहाँ पे ऐसे लिखा नहीं, पूरा थ्रेड देखो कैसे है, तब हमें पता चले। Independently we just pick and choose certain shlokas verses, then we cannot understand. Any questions? Pallavi Mataji, yes. श्री कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रभु जी। ये शास्त्र निपुणः जो कनिष्ठ अधिकारी के लिए है, दीक्षा कहाँ पर प्रभु जी वहां पर ये होती है कि शास्त्र में भले अनिपुण हो लेकिन दीक्षा ली हो तो फिर भी उसे कनिष्ठ अधिकारी मानना चाहिए प्रभु जी? हाँ, क्योंकि ये जो विभाजन है अभी वो अलग अलग कल हम देखेंगे एक्चुअली कि श्रीमद् भागवतम में भी एक प्रकार का विभाजन आता है, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन भी प्रभुपाद जी विभाजन करते हैं, है ना। तो कैसे वो कल हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, परंतु ये जो विभाजन है उसके अनुसार तो दीक्षा ले लिया उसने, अभी गुरु ने परखना चाहिए, गुरु ने बिना परखे किसी को दीक्षा दे दिया, तो ऐसे हो सकता है कि व्यक्ति का श्रद्धा भी कोमल श्रद्धा ही है, उसका फर्म कन्विक्शन नहीं है, उसने दीक्षा ले लिया, ये गुरु के ऊपर डिपेंड करेगा। One has to test before accepting disciple, right? So it may happen that a person may not have a strong faith in scriptures and still may accept initiation just by looking at others, जो ये कर रहे तो हम भी करेंगे, right? But person may have faith in other things also, right? So there is not relationship between initiation and faith, उसका कोई relationship नहीं है। Ideally a person who has got at least मध्यमाधिकारी, जिसका भक्ति में श्रद्धा है, उत्पन्न हुआ है, ऐसे व्यक्ति को दीक्षा देना चाहिए, ऐसे व्यक्ति ने दीक्षा लेना चाहिए आइडियली। थैंक यू प्रभु। और कोई प्रश्न है किसी का? मुझे ये जो आज हमने डिस्कस किया श्रद्धा वाला, ये कौन से टॉपिक के अंदर, ये उसी के चल रहा था जो कल आपने पढ़ाया था, उसी के आगे है ये? यस, हमने देखा कि देखो वैदिक अधिकारी और रागानुगा 2 प्रकार है ना। एक है वैदिक अधिकारी जो शास्त्र के अनुसार जिसका श्रद्धा है, शास्त्र में श्रद्धा, उसे वैदिक अधिकारी कहा गया है, या वैदिक भक्ति कहा गया है, जो शास्त्र के अनुसार व्यक्ति कार्य करता है, अपने भक्ति में कार्य करता है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है, शास्त्र, बट उसको प्रेम नहीं भगवान के प्रति। अभी ऑफ कोर्स वी सॉ दैट देयर इज अ कॉम्बिनेशन, ऐसा नहीं कि 100% स्क्रिप्चर्स में फेथ और बाकी 0 कुछ भी प्रेम नहीं भगवान, ऐसा नहीं होता है, जनरली परसेंटेज ज्यादा है कि शास्त्र कह रहे इसलिए। तो इस वैदिक अधिकारी के भी 3 प्रकार, या वैदिक भक्ति करने वाले व्यक्ति के 3 प्रकार, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी। वैदिक भक्ति पूर्ण डिपेंड है शास्त्रों में फेथ के ऊपर, कि उसके बेसिस से स्क्रिप्चर्स कह रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं, तो उसका कितना फेथ है, कन्विक्शन भक्ति शास्त्रों में, इसके अनुसार 3 उसके प्रकार दिए गए। ओके जी बिल्कुल, थैंक यू। जो उत्तम अधिकारी भी है यहाँ पे, वो भी वैदिक भक्ति का ही प्रैक्टिस कर रहा है। At least externally. Okay. संगीता माता जी, yes.
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जो वैदिक भक्ति होती है ये लेकिन दोनों ही मार्ग वाले अपना रहे हैं ना, जिन्होंने ऐश्वर्य मार्ग भगवान की ऐश्वर्य भक्ति कर रहे हैं, और जो आगे भगवान की माधुर्य भक्ति भी पढ़ना चाहते हैं। यस यस, परंतु अ, जैसे हम डिस्कस करते हैं हमारा सीढ़ी अलग है. So those who are in a specifically in a Krishna consciousness movement actually, because there is a specific flavor of Chaitanya Mahaprabhu and through Sankirtan, that particular flavor जो जीव के हृदय में जो भगवान के प्रति नेचुरल राग है वो gradually by practice of devotional service that will get more and more aroused. एक मिनट. जी तो मुझे आपका माइक जो दूसरे वाला है ना, शायद वो अनम्यूट हो गया, उस कारण आ रहा है क्या? ओके. हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, पूजा माता जी, पूजा आदरणीय माता जी, प्लीज आपका माइक म्यूट कीजिए. एक सेकेंड. ओके. यस. हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे नारद मुनि है वो ऐश्वर्य भाव के भक्त हैं, पर उन्होंने नारद पंचरात्र दिया है मतलब हमारी वैदिक भक्ति के लिए। वैसे तो नारदी गोपी भी बने. कैसे समझे प्रभु? वो नारद कुंड है वहां पे, नो, नारद मुनि. आप वृंदावन में गोवर्धन में जाओगे तो नारद कुंड, वहां पे नहा के वो नारदी गोपी बन गए. वो भी रासलीला में भाग लिए थे. अच्छा, तो मतलब प्योरली वो ऐश्वर्य भाव नहीं है उनका, उनका भी माधुर्य भाव है, ऐसा कह रहे हैं आप? सो ही हैज आइडिया अबाउट. जी प्रभु। उनको आप कह सकते कि ही हैज आइडिया अबाउट दैट बिकॉज उनको भगवान का कृपा मिला है और वो नारदी गोपी भी बने थे. एक्चुअली देयर इज नो क्लियर इंस्ट्रक्शन स्क्रिप्चर, सो आई कैन नॉट, वी कैन जस्ट टेक इन्फरेंस कि शास्त्रों में से पाया गया और ऐसे हम कह सकते हैं, है ना. क्योंकि लिखा नहीं गया ऐसे नारद मुनि कौन से. हम लोग नारद पंचरात्र फॉलो करते हैं, है ना, भागवत विधि दोनों फॉलो करते हैं ना, नारद पंचरात्र और भागवत. पंचरात्र का विधि भी फॉलो नारद पंचरात्र, एंड फॉर भागवत विधि फॉलो Srimad Bhagavatam scriptures reading, but for deity worship we follow Narada Pancharatra. Narada also given bhakti Narada Bhakti Sutra. So Narada has understanding of pure bhakti because yes, no, हम बृहद भागवतम में भी देखते हैं कि नारद मुनि ने देखा कि सबसे उत्तम भक्त क्या है. He understood by his own experience. गोपी जो है वृंदावन की गोपी ब्रज गोपियां, उनका प्रेम सर्वश्रेष्ठ है. हम बृहद भागवतम में पाया जाता है, नारद मुनि दिखते हैं. तो बाकी लोग भी वैदिक भक्ति का पालन करते हैं, परंतु क्योंकि उनका सीड, हमारा जो सीड है, दैट कमिंग इन चैतन्य महापुरुष मूवमेंट, एज वी मेंशन, करेले का सीड और पंपकिन का सीड शुरुआत में सेम दिखता है बट अलग होता है. उसको करेले का फ्रूट आता है, उसको पंपकिन का फ्रूट आता है. तो फॉर्चुनेटली हमें ये प्रेम भक्ति का ही हमें सीड दिया गया है, तो उसी प्रकार के फ्रूट आएंगे उसे प्रेम भक्ति के. हालांकि शुरुआत में जो वैदिक भक्ति है वो धीरे धीरे प्रेम में रूपांतरित हो जाएगी जब हम श्रवण कीर्तन जारी रखेंगे. तो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में यही सीड बांटे जा रहे हैं प्रेम भक्ति के. जी प्रभु, जी प्रभु, ठीक है. थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. धन्यवाद. पल्लवी माता जी. प्रभु जी, नारद मुनि को इसलिए भी कृपा मिली होगी ना, ही इज द बेस्ट प्रीचर. बहुत प्रीच किया. राजाओं को भी प्रीच करते थे जा जाके. दोनों भी कैसे, उनको बहुत कृपा मिला इसलिए बहुत प्रीचिंग करते, उनको बहुत कृपा मिलता रहता है. दोनों भी कह सकते हैं. यस, बबीता माता जी. कृष्ण प्रभु जी प्रणाम. प्रभु जी, क्या उत्तम ही शुद्ध भक्त होता है क्या भगवान का? एक्चुअली जो कनिष्ठ अधिकारी भी, उसका भी श्रद्धा जो है वो शुद्ध हो सकता है, और जो उत्तम अधिकारी हो, मिश्र श्रद्धा वाला व्यक्ति भी उत्तम अधिकारी हो सकता है, क्योंकि उसमें उसके श्रद्धा में उत्तम है, वो बहुत कन्विक्शन उसका स्ट्रांग है, बट वो मिश्र श्रद्धा है उसका. और इसका जो है, इसका श्रद्धा शुद्ध श्रद्धा है, परंतु कन्विक्शन अभी थोड़ा कम है. समझ रहे हैं? तो शुद्ध भक्त, जो वैदिक अधिकारी, वैदिक भक्ति, वैदिक साधना जो है उसमें कनिष्ठ अधिकारी है, वैदिक साधना में वो भी वैदिक भक्ति का पालन करते हैं. और वैदिक भक्ति जो आते है वो भी उत्तम भक्ति का अंग है. वैदिक स्तर पे भी उत्तम भक्ति कर सकते हो. उसका मतलब कनिष्ठ अधिकारी भी उत्तम भक्ति कर सकता है, क्योंकि उसका फेथ रीडिंग हियरिंग स्क्रिप्चर्स में स्ट्रांग है. ही नोज भक्ति करके मेरा उद्धार होने वाला है. बट क्या होता है, कोई स्ट्रांग लॉजिक वाला आदमी आता है, कुछ बोल देता है, तो थोड़े समय के लिए उसका श्रद्धा हिल जाता है थोड़ा. कुछ समय के लिए he become disturbed in his faith. Again, with his own understanding, and he meditates upon instructions of Guru, and he comes back to
कि नहीं यही सही है, भक्ति है, बट उसको सपोर्ट नहीं कर पाता इतना अच्छा फेथ। अभी और कल डिटेल में डिस्कस करेंगे हम से। परंतु वैसे तो कनिष्ठ अधिकारी है जो वैदिक साधना का पालन कर रहा है, वो भी एक प्रकार से शुद्ध भक्ति का पालन कर रहा है। ओके ठीक है, ओके प्रभु, देन थैंक यू, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। डन ऑन क्वेश्चंस। तो मध्यमाधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी इनके बारे में कल हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। टुमारो आई थिंक विल हैव last class of this chapter, and then day after tomorrow onwards we'll have break for Bhakti Shastri classes. Like we'll continue our recitation probably, this Kartik month is going on. It's nice to recite, and we may change a little bit timing. We may change. Let me see what is our yatra schedule. Accordingly, we may a little bit change. But I don't want to stop because every day we've been doing so many days. तो stop नहीं करेंगे, recite करेंगे भागवतम। कार्तिक का महीना चल रहा है, इससे शुद्ध ध्वनि हम क्या उत्पन्न कर सकते हैं, शास्त्रों का हम उच्चारण करेंगे तो बेस्ट रहेगा। बट भक्ति शास्त्री आई थिंक ऑन 23rd और 24th ऑफ दिस मंथ विल अगेन बिगिन। प्लीज मिस मत कीजिए, इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है और इफ एवरीबडी इज टुगेदर तो और अच्छा लगता है समझने के लिए। रिकॉर्डिंग सुनना थोड़ा अलग है और कई बार रिकॉर्डिंग सुनना होता नहीं है ना, तो प्रयास कीजिएगा कि आप उपस्थित रहे। ठीक है, हरे कृष्ण, नमः प्रणाम। मानस प्रो आपने हाथ खड़ा किया कैमरे में, कुछ बोलना चाहते हैं? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। 3 times we chant हरे कृष्ण महामंत्र, then we close। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण